ڈیئرس السلام علیکم. آپ موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند. کافی دنوں سے میں اپنے یوٹیوب چینل اور سب تک پیج پر آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. خاص طور پہ سینٹر آف پاکستان کی پلیٹ فارم پر انسان دوست اور سماجی خدمات اسپیشلی برسات متاثرین کی مستقل آباد کاری کے حوالے سے مصروفیات کے باعث میں سوشل میڈیا کو آپ دوستوں کو ٹائم نہیں دے سکا. لیکن سندھ اور وطن عزیز پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آئے دن نئے دکھائق، دردناک، عبرتناک، حیرتناک واقعات ہمارے ارد گرد یوں سمجھیں کہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. جب بات کی جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ سلطان رند سمیت فلاں ان کا رویہ، ان کا لہجہ تلخ ہے. لیکن حقائق اتنے تلخ ہیں کہ ان حقائق کی روشنی میں اس تناظر میں جس سے ہم گزر رہے ہیں کتنا رویہ تلخ کیا جائے یہ کم ہے. حالات اور واقعات اتنے زیادہ اور خراب ہیں. کل کے واقعے سے آغاز کریں. ضلع جامشورو 7 یعنی کہ کلندر کی نگری کے ساتھ ساتھ قومی شاہراہ پر ایک وین جو کھائی میں جا گری. کون سی کھائی؟ جو حکومتی نااہلی کے باعث اب تک وہ کھائیاں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. پانی کی نکاسی کے لیے جو راستہ بنا گیا، جس طرح جگاڑی سسٹم ہوتا ہے، تیز رفتار وین ڈرائیوروں کے لیے بھی کوئی ڈسپلن، کوئی قانون، کوئی رہنما نہیں ہے. مقصد انتظامی نااہلی، بے حسی اور لاچاری کے باعث وین پانی میں جا کے گرتی ہے اور ایک ماں باپ اپنے 7 بیٹیوں اور ایک معصوم بچے بیٹے سمیت تڑپ کر دم توڑتے ہیں. ان کے ساتھ وین میں موجود ان کے گاؤں کے 20 انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. یوں ضلع خیرپور کے گاؤں دادو فلوپوٹرو کے بدنصیب باپ، ماں، 7 بیٹیوں، ایک بیٹے، 20 اپنے گاؤں کے رہائشیوں سمیت دم توڑتے ہیں. یہ پہلا واقعہ نہیں روڈ حادثے کا، برساتی پانی میں ڈوب کر ہلاکتوں کا. یہ پہلی انتظامی نااہلی نہیں ہے. سندھ کے حالات سے گزر رہا ہے. کچھ دن کی بات ہے کہ ضلع گھوٹکی کے راونتی کے علاقے میں جس دیدہ دلیری کے ساتھ پولیس کے افسروں اور جوانوں کو شہید کیا گیا، جس میں ڈی ایس پی عبد المالک بھٹو، 2 SHOs جن میں عبد المالک کمانگر اور دین محمد لغاری، 2 پولیس کے جوان شامل تھے. اب تک ان ڈاکوؤں کے خلاف کیا ہوا ہے؟ کیا یہ پہلے DSP رینک اور SHO رینک کے افسران تھے جن کو شہید کیا گیا؟ نہیں. اس سے قبل ضلع شکارپور کے خانپور تحصیل کے DSP راؤ شفیع اللہ، اس سے قبل SHO لکھی غلام شاہ، مرتضی میرانی سمیت، اس سے قبل گڑیا سین کے DSP، اور اس دوران اس سے قبل لگ بھگ
100 के करीब पुलिस के अफसरों और जवानों को शहादतें नोश करनी पड़ी हैं। शहादतें पुलिस के जवानों फोर्सेस का मीरास है, क्योंकि वो जो कौम और वतन की हिफाजत के लिए रोड रास्तों पर खड़े रहते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, यकीनन उनको अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से पुलिस को पावरलेस करके गैर मुसल्लह बनाकर जिस तरह से डाकुओं को ताकतवर बनाया गया है, जदीद असले से उनको लेस करवाया गया है, और यूं जदीद असले से लेस क्रिमिनल्स और डाकुओं के सामने गैर मुसल्लह पुलिस, जिनके पास इंतहाई महदूद रिसोर्सेज हैं, वक्तत बंद गाड़ियों की कहानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, सच भी यही है कि कागज़ के कहूँ या टीन के डब्बे नुमा वक्तन बंद गाड़ियाँ हैं, और जब भी डाकू हिट करते हैं तो उन वक्तन बंद गाड़ियों में मौजूद पुलिस के अफसरों और जवानों को शहादतें नोश करनी पड़ती हैं। इसलिए अब पुलिस भी समझ गई है, उन डब्बे के बने हुए वक्तन बंद गाड़ियों का सहारा नहीं लेती, और यही वजह है कि रावती में पुलिस के जवानों को उनका घेराव किया गया और उनका मुहासरा करने के बाद उनको शहीद किया गया। सिर्फ बात रावती की घुटकी के पुलिस के जवानों की शहादत की या 100 कबल पुलिस, इससे कबल 100 के लगभग पुलिस के अफसरान और जवानों की शहादत की नहीं है। और सिंध में न थमने वाला डाकू राज का सिलसिला ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात अहम यह है कि सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, वो डाकू राज के खात्मे के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए कतई तौर पे सीरियस नहीं है। ये सच है, कोई माने या ना माने। सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। कराची के मंगोपीर के इलाके में मुख्तियार कार एजाज चांडियो को जिस तरह से, जिस दीदा दिलेरी के साथ दिन दिहाड़े खुलेआम फराइज के अदायगी के दौरान शहीद किया गया, 2 रेवेन्यू के मुलाजिमों को जख्मी किया गया, और वो डाकू, वो क्रिमिनल्स आज भी कराची में खुलेआम सरेआम अपनी जगहों पर, अपने घरों पर मौजूद हैं। क्या हुआ, या माजी में कानून को हाथ में उठाने वाले क्रिमिनल्स के खिलाफ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। यकीनन एजाज चांडियो के कातिल भी दिन दनाते फिरते रहेंगे, और यूं हम कुछ दिनों के लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, चीखेंगे भी, लेकिन फिर हम भी भूल जाएंगे। एक और कहानी जो ज़िले शिकारपुर से मुंसलिक है। कहानियाँ तो इतनी हैं, दर्दनाक कहानियाँ, दर्दनाक किस्से, वाक़यात, जिन पर शायद इस मुख्तसर वीडियो क्लिप में बात नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरा सिंध क्रिमिनल्स और डाकुओं के हवाले है। कानून की हुक्मरानी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। और यूँ समझे, अगर यूँ कहें हम, ये वजह होगा कि हम खुदा के सहारे चल रहे हैं। शायद यही वजह है कि खुदा को हमें चलाना है, हम चल रहे हैं। अगर नहीं, जिस तरह से पुलिस को पावरलेस बेअख्तियार किया गया है, जिस तरह से डाकू राज को, क्रिमिनल्स को बेलगाम करके छोड़ा गया है, और जिस किस्म की हिकमत अमली के साथ गवर्नर्स को चलाया जा रहा है, ऐसे हालात में एक डीएसपी, 2 एसएचओ, क्या मैं कहता हूं कि अगर किसी ज़िले की पूरी फोर्स को इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, अगर शहादत नोश करनी पड़ी, तो तब भी एक डीएसपी, 2 एसएचओ और 2 जवानों के लिए एक हफ्ताम सोग में रहे। एक मुख्तियार कार के लिए हम 3 दिनों तक सोग में रहे। और 7 वाक़या जो इंतज़ामी नाले की वजह से रास्ते टूटे पड़े हुए हैं, और कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, जिसके नतीजे में, नाकार निज़ाम के नतीजे में वैन हादसे का शिकार होती है। माँ बाप, 7 बेटियों, अपने एक मासूम बच्चे समेत 20 अफराद एक ही गांव के जाँ बाग हो जाते हैं। 3 दिनों तक, हफ्ते तक, ज़्यादा 10-15 दिनों तक हम सोग मनाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, फरियादें करते रहेंगे, लेकिन ये सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि इससे कबल भी 50-50, 100-100 अफराद एक ही दिन में जाँ बाग हुए हैं। मुख्तलिफ हादसात में पुलिस के जवानों को शहादत नोश करनी पड़ी है। लाकन उनकी इंतहा रही है।
जिसने जो चाहा है उसने वो किया है, लेकिन हम 3 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों तक शोक मनाते हैं, मातम करते हैं, फिर भूल जाते हैं। शिकारपुर में एक वाकया जिसमें एक कत्ल हुआ, 5 से ज्यादा जख्मी हुए, लेकिन एक कत्ल और 5 से ज्यादा जख्मी, ये वाकया तो छोटा है सिंध में, क्योंकि सिंध इस किस्म के वाकयात पर नजर भी नहीं रखती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वाकयात आए दिन हमारा इस्तकबाल करती रहती है। लेकिन ये एक वाकया अहमियत इसलिए रखता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर, एक्स MPA और उनके भाई जो अभी वफाकी वजीर भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उनका एक बहुत बड़ा एक वैल्यू है, एक अहमियत है। पीपल्स पार्टी के एक ताकतवर घराने जो बड़े बड़े इस वक्त पे मनसूबों में बैठे हैं, उन पर तक्के के क्रिमिनल्स हिट करें, उनके कज़न को जख्मी करें और उनके लोगों को यरगमाल बनाएं। और इस किस्म के ताकतवर लोग जिनका मैं नाम आपको बताऊं, मीर बाबल भयो, जो खुद बया कबीलों के ताकतवर सरदार हैं, एक्स MPA रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर रहे हैं। उनके भाई मीर आबिद हुसैन भयो अभी भी निजकारी के वफाकी वजीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले शिकारपुर सदर हैं। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वो कबीलाई तौर पे, ज़ाती तौर पे यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के कितने करीब हैं और कितने ताकतवर हैं। एक ताकतवर कबीले के सरदार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, यानी कि सिंध में सबसे बड़ी ताकतवर कुव्वत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के इंतहाई करीब तरीन समझे जाने वाले ताकतवर तरीन सियासी घराने भयो ख़ानदान कि अगर कजन्स, उसकी फैमिली, यहाँ तक कि मीर बाबल भयो को भी हिट करने की कल कोशिश की गई, तो लाकान यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन पुलिस को किस काम से लगाया गया है, गवर्नेंस क्या कर रही है, उसके लिए मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तमाम तर सूरताल को सामने रखते हुए मैं आखिर में एक ही गुजारिश करूँगा हुक्मरानों से, और एक ही गुजारिश करूँगा मीडिया, सिविल सोसाइटी और खल्क़ खुदा से। ये हुक्मरानों, अगर आपने क्रिमिनल्स को अपने टक्के के मफादात के लिए इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा, अगर उनके खात्मे के लिए आपने ठोस हिकमत अमली नहीं बनाई, और क्रिमिनल्स डाकुराज के खात्मे के लिए कानून के हुक्मरानी की रिट ऑफ लॉ के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप सिंध पुलिस को बाख्तियार करें। उनको जिस तरह से अपने मफादात और मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से सिंध पुलिस को कमज़ोर किया गया है, अगर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ तो कल मीर बाबल भयो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताकतवर तरीन सियासी रहनुमाओं से हैं, अगर वो हिट हो सकता है, उसकी फैमिली हिट हो सकती है, तो याद रखना आप में से कोई भी इन क्रिमिनल्स से बच नहीं सकता। इसलिए आप सबका मफाद इसमें है, आप सबका मुस्तकबिल इसमें है। कौम तो जल रही है, कौम तो पिस रही है, आप वो तमाशा देख रहे हैं। लेकिन वक्त के हुक्मरानों, अगर आपने होश के नाखून नहीं लिए तो याद रखना ये कल आपके लिए इंतहाई मुश्किल तरीन हो जाएगा। तो इसलिए अगर कौम पर रहम नहीं करते तो कम से कम अपने आप पे तो रहम करें। खुदा की कसम, ये वो हकायक हैं जिनको हुक्मरानों को होश के नाखून लेकर समझने पड़ेंगे। एक नई हिकमत अमली तरतीब देनी पड़ेगी। जिन कबीलों ने, जिन लोगों ने क्रिमिनल्स को पाला है, उनको भुगतने पड़े, और जो अभी पाल रहे हैं उनको भुगतने पड़ेंगे। तो सिंध के हुक्मरान अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें। ये हुक्मरानों की अपील है, हम अपील ही कर सकते हैं और इस पे अमल करें। ये नामुमकिनात के करीब है। दूसरी बात, मीडिया, सिविल सोसाइटी के, खुदारा आप भी टक्के के मफादात, लिफाफों के चक्कर और ठीकों की बीमारी से बाहर निकलें। खुदारा अपनी कौम को बचाने के लिए, अपनी पुलिस के मोराल को बुलंद करने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, रिट ऑफ लॉ के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करें, आवाज़ बुलंद करें, हुक्मरानों की तवज्जो दिलाएं। जो रोल आपका मेरा बनता है वो अदा करें। अगर नहीं तो याद रखना, जिस तरह से लाकानियत
کی انتہا ہوتی جا رہی ہے، جس طرح سے پولیس کو کمزور کیا گیا ہے، جس طرح سے گورننس کے ایشوز پیدا ہوئے ہیں، جس طرح سے لاقانون کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، یاد رکھنا یہ ٹکے کے مفادات آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اس لیے اپنے آپ پر ہی رحم کیجئے اگر قوم پر آپ کو ترس نہیں آتی۔ قوم سے میری اپیل ہے، مؤدبانہ اپیل ہے، خدا را اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے حالات پہ توجہ دو۔ کب تک یوں روڈ راستوں پر بھی مرتے رہو گے، اپنے گھروں میں بھی غیر محفوظ رہو گے اور ڈاکو راج کے حوالے چیختے چلاتے اور مرتے رہو گے، قبیلائیت کے نام پر مرتے رہو گے؟ کب تک ذلیل اور خوار ہوتے رہو گے؟ اس لیے تم بھی اپنی پالیسیوں پر، اپنے حال پہ رحم کرو۔ اگر اپنے آپ پر رحم نہیں کرو گے، حکمرانوں کو حقیقت کا آئینہ نہیں دکھاؤ گے، پیسفل پروٹیسٹ نہیں کرو گے، اپنے حقوق کے لیے نئی حکمت عملی کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ جدوجہد نہیں کرو گے، آگے نہیں بڑھو گے، تو یاد رکھنا ضلالت جو ہمارے اور آپ کے مقدر میں آ چکی ہے، خواری اور خرابی، موت، تو اس سے بھی مزید مشکل ترین مصیبتوں میں پھنسنے جا رہے ہیں، جہاں سے پھر جان چھڑانا مشکل ہو۔ اس امید کے ساتھ قوم، سول سوسائٹی، میڈیا اور حکمران اگر ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے تو کم از کم اپنے آپ پر رحم کریں، کیونکہ قانون کی حکمرانی، رٹ آف لا، کم از کم میرے اور آپ کے لیے، اسٹیک ہولڈرز کے لیے، ان کے جینے کے لیے، ان کے مفادات کے لیے ضروری ہے۔ دوسروں کے لیے نہیں صحیح، لیکن اپنے لیے تو سوچو۔ اس امید کا اندھیر نگری کا راج ختم ہوگا، بہتری آئے گی۔ اپنے میزبان سلطانیت کو دیجیے اجازت۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد۔ یہ مظلوم، محکوم اور مصیبتوں اور مسئلوں میں پھنسی ہوئی قوم پائندہ باد۔